بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایکسرسائز 15.4 کی تھیوری کا پارٹ نمبر 2 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی تھیوری میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈبل انٹیگرل ان پولر فارم، اس کے لیے ہم نے یہ والی جو ریلیشن ہے یہ ڈرائیو کیا تھا کہ ان پولر فارم میں اگر کوئی ہمارے پاس پولر کوآرڈینیٹ سسٹم ہو تو وہاں پر جو ڈبل انٹیگرل ہے وہ کس طرح ڈیفائن ہوتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ یہ جو تھیٹا ہے اور آر ہے، اس کی جو گیون ریجن ہوگا اس پر لیمٹس کیسے فائنڈ کرنی ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اور ایگزامپل کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو اس کا پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا، پہلا جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے اسکیچ، یعنی کہ فائنڈنگ دا لیمٹ آف انٹیگریشن کس طرح کرنی ہے۔ اسکیچ، پہلا کام اسکیچ والا ہے، اسکیچ دا ریجن اینڈ لیبل باؤنڈنگ کروز۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ریجن اس نے کہا ہے اس کو کیا کر لینا ہے، اسکیچ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ فائنڈ دا آر لیمٹس آف انٹیگریشن۔ تو یہ جو اسکیچ تھا، ریجن تھا، اس کو ہم نے اسکیچ تو کر لیا۔ اس کے بعد اب ہم نے آر کی لیمٹس فائنڈ کرنی ہے۔ تو آر کے لیے آپ کیا کریں گے کہ امیجن a ray line L from the origin cutting through the R in the direction of increasing R، یعنی کہ اس ریجن کو اسکیچ کرنے کے بعد اوریجن یعنی کہ کوآرڈینیٹ سسٹم کے اوریجن سے آپ نے ایک لائن کھینچنی ہے، کس ڈائریکشن میں، جس ڈائریکشن میں آر انکریز کر رہا ہو۔ تو وہ جو لائن ہے جس کو پہلے چھوئے گی وہ آر کی پہلی لیمٹ ہوگی، یعنی کہ لوور لیمٹ ہوگی، اور جب آر دوسری دفعہ جس لائن کو چھوئے گی وہ آر کی اپر لیمٹ ہوگی۔ مارک دا آر ویلیوز وائر ایل انٹرز اینڈ لیوز آر، یعنی کہ وہ ریجن جن پہ انٹر ہو رہی ہو آر ایل وہ اس کی لوور لیمٹ، اور جب جس کو لیو کر رہی ہو، انٹر ہو کے نکل رہی ہو، وہ آر کی سیکنڈ لیمٹ۔ There are limits of R integration. They are usually depend on the angle theta and L makes with the positive x-axis. یعنی کہ یہ جو وہ usually depend کرتا ہے اس تھیٹے پہ کہ L کو کس طرح سے لینا ہے۔ تو چلیں آگے، اب ہم نے R کی جو لیمٹس تھی وہ ہم نے فائنڈ کر لی، اب ہمیں تھیٹا کی لیمٹس چاہیے۔ تو لیمٹس اس کی کس طرح فائنڈ کریں گے، فائنڈ the smallest and largest theta value that bound R۔ یہ جو ریجن ہمیں گیون ہے اس میں ہم نے smallest اور greatest تھیٹا کی لیمٹس ڈھونڈنی ہے، اور وہی جو ہوں گی اس کی لیمٹس آف انٹیگریشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ the polar iterated integral is کہ یہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر اس نے ایک ایگزامپل دی ہے، تو چلیں اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ یہ اس نے ایک ریجن دیا ہے، اس نے ایک یہ ریجن دیا ہے کہ R is equal to 2، ٹھیک ہے۔ R is equal to 2 کا مطلب کیا ہے، اس کو میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک سرکل R is equal to 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے ہمیں ایک ریجن سکیچ کرنے کو کہا ہے، اس نے ہمیں دو ریجن دیے ہیں، ایک ہمیں دیا ہے کہ x² plus y² is equal to 4، اور دوسرا اس نے ریجن کہا ہے کہ y is equal to square root of 2۔ یہ آپ نے دونوں ان کے درمیان جو باؤنڈیڈ ریجن ہے اس کا پولر کوآرڈینیٹ یعنی کہ اس فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کا جو ڈبل انٹیگرل ہے وہ فائنڈ کرنا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں ریجن سکیچ کرنا ہے، اسٹیپ نمبر 1۔ وہ ہم نے کیا کیا کہ یہ جو لائن ہے یہ کس کو ڈینوٹ کرے گی، یہ کرے گی y is equal to square root of 2۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ x² plus y² is equal to 4، یہ کس کی سرکل کی ایکویشن ہے، ایسا سرکل جس کا سینٹر کیا ہو، اوریجن پہ ہو، اور اس کا ریڈیس کیا ہو، 4 ہو۔ تو یہ والا جو سرکل ہوگا اس طرح سے سرکل بن جائے گا، اور یہ y is equal to square root of 2۔ تو یہ ان کے درمیان جو باؤنڈیڈ ریجن ہوگا وہی ہمارا ریکوائرڈ ریجن ہوگا جس میں ہم نے ڈبل انٹیگرل کو ڈیفائن کرنا ہے۔ تو یہ بات ہم نے سب سے پہلا جو سٹیپ تھا کہ ہم نے اس کو سکیچ کرنا ہے اس ریجن کو۔ اب دوسرا سٹیپ کیا ہونا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہونا ہے کہ آپ نے آر کی لیمٹس فائنڈ کرنی ہے۔
अब क्योंकि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, और जो अगर इन जनरल इक्वेशन देखें तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो आर स्क्वायर है वो इक्वल होगा 4 के, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4 के होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि आर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो ये पहली बात तो ये हो गई कि ये जो कर्व बन रही है एक सर्कल की एक छोटी सी आर्क है, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर है, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस आर होगा वो कितना होगा, आर इज इक्वल टू 2 होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, इसको हमने आर इज इक्वल टू 2 का नाम दे दिया, इस जो ये वाली आर है, ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात, अब हमने क्या करना है कि इसको भी आर में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वाई को हम क्या कंसीडर करते हैं, आर साइन ऑफ थीटा। जब हम किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो एक्स को कन्वर्ट करते हैं आर कॉस ऑफ थीटा, और वाई को कन्वर्ट करते हैं आर साइन ऑफ थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इक्वल क्या करते हैं, वो इक्वल होता है आर के, आर स्क्वायर के, ठीक हो गया। तो ये तो हमने पहला काम कर लिया। दूसरा काम हमने क्या करना है कि y जो गिवन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको इक्वल लेंगे, विच विल बी इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो साइन थीटा इधर जो होगा डिवाइड होगा तो ऊपर जाकर नोमिनेटर में ये कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। इसका मतलब जो ये वाली लाइन थी जिसको हमने y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहा था, इसकी एन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू कोसिकेंट थीटा, ठीक हो गया। तो ये दोनों r हमें मिल गए, r की दोनों जो लिमिट्स हैं वो हमें मिल गई हैं, क्लियर हो गया। तो ये मैंने कन्वर्ट भी करना सिखा दिया, वैसे कन्वर्ट इसको करना नहीं था, ये मैं थोड़ा सा तरीका आपको बता रहा हूँ कन्वर्ट करने का। वैसे ये गिवन है, उसने नहीं कहा, उसने जस्ट एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की। अब ये कैसे कन्वर्ट हुई ये मैंने आपको बता दिया, ये आगे जाकर हम इस टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। अच्छा, इसके बाद आर की लिमिट्स भी हमने फाइंड कर ली। अब उसने एग्जाम्पल में बस ये दिखा दिया है कि ये इस तरह से आपने क्या करना है आर की लिमिट्स। अब आर आ गया हमारे पास, अब आर की लिमिट्स के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑफ आर में एक क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। जब इंटर हो रही होगी लाइन एल तो वो आर की लोअर लिमिट होगी, जब लीव कर रही हो कोई जिस पॉइंट पे वो आर इज इक्वल टू क्या होगी, उसकी अपर लिमिट होगी। तो आर 2 पे क्या कर रही है, लीव कर रही है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कोसिकेंट थीटा के पे इंटर कर रही है, तो ये इसकी लोअर लिमिट होगी। आर की लिमिट हमने फाइंड कर ली, क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, अब भाई हमने फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो अगर हम क्या कर लें कि ये इस तरह से एक लाइन खींच लें, ठीक हो गया, ये लाइन है, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एंगल इधर फाइंड कर लें और ये वाला इधर से यहां से लेकर यहां तक का हमने एंगल फाइंड करना है। अब चूंकि ये लाइन खींची, इस पे आप अमूद भी गिरा लें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहां से यहां तक कितना है हमारे पास डिस्टेंस, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहां से यहां तक कितना है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है तो क्या होगा कि ये अगर हम इस पे ये tan का फार्मूला लगाएंगे, tan ऑफ क्या होता है y बाई एक्स होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ओवर बेस होता है। तो यहाँ पर y क्या है, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, और tan थीटा 1 कहां पर होता है, जहां पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, पाई बाई 4 होगा। क्लियर हो गया। अब ये एंगल भी मैंने आपको बता दिया कि आपने एंगल को किस तरह फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो यहां पर हमने देख लिया कि ये जो एंगल है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये पाई बाई 4 है। अब क्योंकि हमने ये वाला अब हम एंगल यहां से यहां तक का एंगल फाइंड करना है, तो वाई एक्सिस पर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब एंगल भी हमें मालूम हो गया कि वो क्या है, हमने इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू भी देख ली है और इसकी लार्जेस्ट वैल्यू भी देख ली है। स्मॉलेस्ट वैल्यू पाई बाई 4 है और लार्जेस्ट इसकी पाई बाई 2 है। तो हमारे पास आर की भी लिमिट आ गई और क्या आ गई, हमारे पास थीटा की भी वैल्यू आ गई। यही थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू डाल के ये इसका डबल इंटीग्रल हो जाएगा।
अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. तो जब मैं पढ़ता था तो ये एग्जाम्पल आई थी, ठीक है, एग्जाम में, तो ये आपने जरूर याद करनी है. फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रेटिंग फंक्शन ओवर द रीजन लाइज इनसाइड द क्रोकोडाइल r is equal to 1 plus cos of theta and outside the r is equal to 1. सर्कल विद रेडियस 1. तो आपने क्या करना है, पहले तो ये याद रखना है कि ये जो क्रोकोडाइल होता है, यानी कि r is equal to 1 plus cos of theta का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है. यहां पर देखिए, इस तरह का, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, 1 प्लस cos of theta का है. r is equal to 1 plus cos, यानी कि क्रोकोडाइल का. इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके इनसाइड, यानी कि इस सारे की बात कर रहा है, और आउटसाइड द सर्कल विद रेडियस 1, यानी कि एक सर्कल होगा जिसका रेडियस 1 होगा. तो ये हमने वो सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और क्या कह रहा है कि इस सर्कल के आउटसाइड और क्रोकोडाइल के अंदर जो रीजन है उस पे हमने डबल इंटीग्रल को डिफाइन करना है. अब पहली बात तो ये है कि हमने दोनों की जो ग्राफ था हमने स्केच कर लिया. तो ये जो है ये शो कर रहा है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा को, और ये शो कर रहा है जो सर्कल है वो r इज इक्वल टू 1 को. तो सबसे पहले हम ओरिजिन से एक लाइन खींचेंगे, किसके लिए, r की लिमिट के लिए. इंटर किसको कर रहा है, r इज इक्वल टू 1, तो ये इसकी लोअर लिमिट. लीव किसको कर रहा है, r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो ये इसकी अपर लिमिट होगी. तो r की लिमिट आप यहाँ पर डबल इंटीग्रल में लिख देंगे, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट. इसके बाद अब हमने क्या करना है कि इस यहाँ पर सबसे कम और सबसे बड़ा एंगल फाइंड करना है. तो यहाँ पर एंगल कितना होता है, -π/2, और यहाँ पर एंगल कितना होता है, π/2. तो यही आप डाल देंगे कि -π/2 से लेकर π/2 तक होगा इसका एंगल. तो ये हमने तीनों चीजें कर ली, स्केच भी कर लिया, r की लिमिट भी, थीटा की लिमिट भी, और ये फंक्शन लिख दिया r d थीटा लिख के हमने ये खत्म कर दिया. ठीक है, डबल इंटीग्रल इसके इक्वल होगा. अब जो है वो हम आगे मूव करते हैं एरिया एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. यानी कि अगर एरिया किसी पोलर सिस्टम में आ जाए तो उसको किस तरह कैलकुलेट करना है. जब हमारे पास ये जो फंक्शन होता है डबल इंटीग्रल में, ये वाला, ठीक है, ये जब 1 के इक्वल हो जाए तो क्या होता है, और उस पे उस जो रीजन है उसका अगर हम लिमिट फाइंड कर लें r की भी और थीटा की भी, और फंक्शन को 1 कर दें और उसको डबल इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल उसका लें, तो वो उस पूरे रीजन का क्या होता है, एरिया होता है. एरिया ऑफ अ क्लोज बाउंडेड रीजन आर इन द पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल. तो रीजन आर से मुराद क्या है, यहाँ पे लिमिट्स हैं आर की और थीटा की, r d थीटा, बस वो उसका बाउंडेड रीजन होगा. अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है. फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लेमनिस्केट r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos ऑफ 2 थीटा. तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर ये जो है हमारे पास एग्जांपल है, इसको भी आपने जरूर देखना. अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जांपल आपको करनी चाहिए. ठीक है, अब दो चीजें याद रखनी. पहले में क्रोकोडाइल का जो होता है वो ग्राफ कैसे होता है, और दूसरा आपने जो ग्राफ याद रखना है वो है r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos ऑफ 2 थीटा, यानी कि लेमनिस्केट इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है. ये याद रखना है आपने, ठीक हो. तो इसका हमने एरिया, जो इसके अंदर एरिया है ये फाइंड करना है, ये सारा एरिया फाइंड करना है. तो हम जानते हैं कि जो ये लेमनिस्केट होता है ना, इसका ये वाला जो हिस्से होते हैं ना ये बराबर होते हैं. ठीक है, ये इसके ये बराबर 4 हिस्से जो है ये क्या है, बराबर है. तो अगर हम एक हिस्सा का एरिया फाइंड कर लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारे रीजन का क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा. तो यही चीज हमने करनी है. तो हम क्या करते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पहला हिस्सा है ये हम कंसीडर करेंगे. तो क्योंकि ये किसका ग्राफ है, r स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos ऑफ 2 थीटा का, तो ये हमने रख लिया है इधर ही. ठीक हो गया, क्लियर हो गया. अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहां पर क्या फाइंड करना है कि जो यहां से अगर हम इधर लाइन खींचे और यहां से इधर खींच लें, ठीक है, तो ये एंगल r इज इक्वल टू 0, यहां पर आप 0 पुट करेंगे ना
ठीक है, सॉरी एंगल फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो इधर आप खींचेंगे तो ये जो एंगल इसके साथ बनाता है, ठीक है, ये कितना बनाता है -π/4। इधर आप लाइन खींचेंगे तो ये बनाता है π/4। क्लियर हो गया। आप इसको यहां से फाइंड भी कर सकते हैं। यहां पर जो ये इधर, ठीक है, आप इधर यहां पर आप कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, इस तरह से आप वो ट्राइंगल को यूज करके आप यहां से इसका जो है वो एंगल निकाल सकते हैं। ये -π/4, या आप याद रख लें जो लेमनिस्केट होता है उसके अगर उसके अजेम्पटोज खींचे जाए तो ये एंगल कितने बनाते हैं π/4। अब हमें चाहिए एंगल कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक चाहिए। तो ये जो एंगल होगा वो 0 से लेकर π/4 तक होगा। और जो रेडियस होगा इसके लिए हम एक लाइन खींचेंगे L, जो कि ओरिजिन से निकलेगी और इंक्रीजिंग ऑफ R। तो R कहां पर इंक्रीज हो रहा है, इधर इस साइड पे। तो यहां से ये लाइन L खींचेंगे तो इंटर किसको कर रही है, 0 को, R = 0। और लीव किसको कर रही है, 4 cos 2 थीटा को। तो ये √4 cos थीटा और एंगल की वैल्यू 0 से लेकर π/4 तक। और ये R d थीटा, ठीक हो गया। तो ये हम साथ ही लिखते हैं डेफिनेटली। और दूसरी बात, अब हमने क्या करना है, इसको एवेलुएट करना है। तो इसका इंटीग्रल ले रहे हैं क्योंकि पहले हम R के लिहाज से ले रहे हैं, तो R² 2 होगा और इस पे जो लिमिट्स होंगी 0 से लेकर √4 cos 2 थीटा। तो आप इधर अपर लिमिट डालेंगे सबसे पहले। तो मैं इसकी लिमिट्स कैलकुलेट कर रहा हूं। 1/2 मैं ले लें। जब हम अपर लिमिट डालेंगे तो ये 4 cos 2 थीटा बनेगा। जब हम माइनस लोअर लिमिट डालेंगे वो विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, जस्ट कि जब हम अपर लिमिट डालेंगे तो R का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 cos 0, ठीक है, ठीक है। अपर लिमिट R² की जगह लगे, हाँ ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई। इसके बाद अब हमने R की जगह पर 0 रखना है, तो 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, तो ये 2 into cos 2 थीटा इसकी लिमिट्स बन जाएगी। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा। तो ये 2 cos 2 थीटा लिख दिया। ये 4 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि हम एक ही ये वाली चीज कैलकुलेट करें, तो इसको ये 1 का है, तो अगर हम 4 का चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटीग्रल को, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये 4 0। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी एवेलुएट करेंगे। ये कितने बन जाएंगे, ये 2 और ये 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 8 बनेगा। और इंटीग्रल आगे किसका होगा, 0 से लेकर π/4 तक, और किसका है, cos 2 थीटा into d ऑफ थीटा। अब ये 8 आएगा इनटू cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होगी sin 2 थीटा ओवर में क्या होगा 2, और लिमिट होगी 0 से लेकर π/4 तक। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, 4 sin 2 थीटा, लिमिट है 0 से लेकर π/4। π/4 पर 2 थीटा, चलो हम देख लेते हैं, इधर भी दिखा लेता हूं कि sin 2 into π/4, तो ये क्या बन जाएगा, sin π/2 विल बी इक्वल टू 1। इसके बाद लोअर लिमिट 0 पुट करें तो ये 0 होगा। इसका मतलब जब 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 ही आएगा। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ये 4 आएगा। इसका मतलब जो एरिया होगा वो 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया, इस लेमनिस्केट का। तो ये 2 एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ये है चेंजिंग कार्टेशियन इंटीग्रल इनटू पोलर इंटीग्रल। ये क्वेश्चंस आएंगे आपको, या ये 2 एग्जांपल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, या ये क्वेश्चंस आएंगे कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको उसने चेंज करना है किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपको गिवन है क्या, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये गिवन है। आपने इसमें क्या करना है कि x को रिप्लेस कर देना है r cos थीटा से, y को रिप्लेस कर देना है r sin थीटा से, dx और dy को रिप्लेस कर देना है r dr d थीटा से। क्लियर हो गया। और ये लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी उन्हीं के रेस्पेक्ट से, कि हम आगे देखेंगे कि लिमिट्स कैसे चेंज होगी। ये r की लिमिट होगी और ये क्या होगी, थीटा की लिमिट। यहाँ पर क्या था, ये x की लिमिट थी, ये y की लिमिट थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि x की जगह पर r cos थीटा, y की जगह पर r sin थीटा, और dx dr की जगह पर r dr d थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा चेंजिंग ऑफ कार्टेशियन इंटीग्रल इनटू पोलर इंटीग्रल।
ठीक हो गया। अब हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एवेल्युएट द इंटीग्रल रीजन उसने दिया है, उसने नहीं कहा, ये अब बाद में बताएगा। उसने कहा है कि एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। तो इसको आपने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। और उसने आर के बारे में क्या बताया कि सेमी सर्कल रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड कर्व वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इन दोनों कर्व्स के दरमियान जो रीजन बाउंडेड है वो रीजन होगा हमारा। तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है। इसके बाद ये कर्व कह रहा है, तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि एक सर्कल बना लेंगे, ठीक हो गया। एक सर्कल रेडियस विद रेडियस क्या होगा, उसका 1 होगा। अब वो क्या कह रहा है कि सेमी सर्कुलर रीजन है, यानी कि सर्कल जो है वो रीजन है, उसका सेमी सर्कल है। इसका मतलब हम किसकी बात सिर्फ करेंगे, सेमी सर्कल है और एक्स एक्सिस, तो ये इसकी भी बात हो सकती है या इसकी भी बात हो सकती है, दोनों में से कोई भी रीजन आप ले सकते हैं। हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो ये वाला है। क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई हो, उम्मीद करता हूं आपको। तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये किसका है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी बात कि ये किसका ग्राफ है, ये है एक्स एक्सिस का। क्लियर हो गया, हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये ग्राफ इधर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब सर्कल, क्योंकि ये जो हमने r की लिमिट्स फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे कि ये जो हमने निकाला है कि यहां से ही हमने निकाल लिया कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये आर स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब r इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये जो r की वैल्यू होगी वो 1 होगी। इसका मतलब हमने क्या कर लिया कि ये जो ग्राफ है ये किसका है, r इज इक्वल टू 1 का। इसको हमने r इज इक्वल टू 1 कह दिया है। क्लियर हो गया, डन। यानी कि यहां पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको किसमें, ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल है आर स्क्वायर के इक्वल। तो आप यहां पर डबल इंटीग्रल लिखेंगे और ये जो ई की पावर क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल। डी वाई डी एक्स को आप रिप्लेस करेंगे आर डी थीटा से। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये आर और डी थीटा की लिमिट्स फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहां पर r कितना है, 1। अब हम r की लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिन से एक लाइन खींचेंगे l। अब इंटर किसमें हो रहा है, ये 0 से लीव किसको कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 1। तो 0 से 1 तक ये होगी r की लिमिट। तो यही हमने लिख दी कि 0 से लेकर 1 तक r की लिमिट होगी। और इसके बाद क्या है कि हमने एंगल फाइंड करना है। तो ये डेफिनेटली ये जो रीजन पूरा है ये बाउंडेड है, एंगल जो है वो 0 से लेकर पाई होगा। तो ये थीटा की जगह पर भी आपने लिख लेना है कि 0 से लेकर पाई तक होगा। तो ये हमने डबल इंटीग्रल हमारे पास आ गया। अब हमें इसी को एवेल्युएट करना है। अब हम इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं। 0 से लेकर पाई तक का लिमिट 0 से लेकर 1 तक है, e की पावर r स्क्वायर है इनटू r है और dr है और d ऑफ थीटा है। ठीक है, तो इसको एवेल्युएट करना है। मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1/2 0 से लेकर पाई तक का लिमिट, और क्या है कि इसको हमने r से इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब हमने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, r स्क्वायर इनटू क्या 2r है और इनटू dr है। अगर e की पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो e की पावर r स्क्वायर, वो e का फंक्शन खुद ही होता है। क्लियर हो गया। अगर इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या हो, उसके साथ मौजूद हो, तो e की पावर r स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन होता है प्लस c तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि e की पावर r स्क्वायर इंटीग्रेशन आ जाएगी और इस पे लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। ये 1/2 आ गया। ये इंटीग्रल
क्या 0 से लेकर पाई तक, इस पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे, r की जगह पर 1 रखेंगे तो ये e आएगा, क्लियर हो गया। और जब हम 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, e की पावर 0 विल बी इक्वल टू -1, ठीक हो। और n2 क्या होगा, यहाँ पर d थीटा होना था, ये भी d थीटा हो जाएगा। अब हम इसका मजीद क्या कर सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट आ गए e-1 और ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब 1/2 e की -1, तो ये इंटेग्रल होगा किसका, 1 का, और इनटू डी ऑफ थीटा, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर पाई तक। तो जो इसका इंटेग्रल आएगा 1 का इंटेग्रल क्या आएगा, थीटा, इसका मतलब क्या होगा 1/2 इंटू ई की -1, और इसका जवाब क्या आएगा इंटेग्रल, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर पाई तक है, क्लियर हो गया। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, जब 1/2 ई की -1, जब हम थीटा की जगह पर पाई लिखेंगे और जब हम 0 लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा π/2 e की पावर e-1। तो ये वो एरिया होगा जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले। अब यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो उसने दी है, जिसमें वो ये बताना चाह रहा है कि किस तरह पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए आसानी पैदा करता है। एक उसने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक डबल इंटीग्रल दिया है और उसने उसको इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू y, तो उसका आंसर ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसने क्या कहा है कि अगर हम इसी क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाएं तो तब हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसको हमने किस तरह करना है, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो एक्स को हम क्या पुट करते हैं, आर कॉज ऑफ थीटा, और वाई को हम पुट करते हैं आर साइन ऑफ थीटा, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम पुट करते हैं आर स्क्वायर। तो ये क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसके लिए हम आर स्क्वायर लगा देंगे, और ये जो डी वाई और डी एक्स होता है इसको हम पुट करते हैं आर डी आर और डी ऑफ थीटा, इसकी जगह पर ये भी लगा, क्लियर हो गया। अब बारी आ जाती है इन लिमिट्स की, आर और जो थीटा है इनकी लिमिट्स कैसे हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये चलते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये लिमिट्स किसकी है, y की, 0 से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो ये y की, यानी कि एक तो y इज इक्वल टू 0 है, और एक y इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है कि y की लिमिट है 0 से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो सर्कल की इक्वेशन है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे किस तरह का, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। अब y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर यहां तक एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जो है ये बन रही है, ये इसकी इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, ये वाली। और y फ्रॉम 0 टू क्या है 1 है, ठीक है। तो ये 0 है, सॉरी y इज इक्वल टू 0, ये इसकी लोअर लिमिट है, और इसकी अपर लिमिट क्या है ये, तो यहां से यहां तक ये होगी इसकी लिमिट होगी। तो ये पहली बात तो ये होगी कि ये इसकी लिमिट हमने देख लिया है कि ये बनेगा इसका ग्राफ। अब जो हमने क्या करना है कि dx की लिमिट देखनी है। अब x की लिमिट क्या से है, 0 से लेकर 1 तक, यानी कि किसकी बात हो रही है, अगर x की बात अगर हम करें तो वो 0 से लेकर 1 तक है, यानी कि यहां से लेकर 0 से लेकर 1 तक। इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा वो जस्ट ये होगा, ठीक है, ये वाला रीजन होगा जिसको हमने देखना है, क्लियर हो गया। तो यहां पर सबसे पहले तो r की लिमिट देखते हैं। तो यहां पर r की लिमिट देखेंगे तो यहां से एक जो है वो ये लाइन खींचेंगे, तो r कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर 1 तक। तो यही हमने r की वैल्यू डाल दी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। और जो एंगल है वो डेफिनेटली हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ वाला एंगल जो है वो 0 से लेकर कहां तक है, π/2 तक। तो यही एंगल हमने डाल दिया 0 से लेकर π/2 तक।
تو اب ہم اس کو آسانی سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آر کی پاور 3 ہوگی. آر پاور 3 کو انٹیگریٹ کریں آر کی پاور 4/4 اور اس پر لمٹ 0 سے لے کر 1 تک 1 پٹ کریں گے تو یہ 1/4 آئے گا. 1/4 کی اس کی انٹیگریشن ہمیں 0 سے لے کر پائے تک تو یہ 8π/8 آ جائے گا. کلیئر ہو گیا. تو یہ اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اس کو کتنا مشکل تھا سالو کرنا اور اس کو کتنا آسان تھا سالو کرنا. تو یہی وہ بیوٹی ہے پولر کوآرڈینیٹ سسٹم کی یا ڈبل انٹیگرل اینڈ پولر فارم کی کہ ہمارے جو ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ سسٹم میں بہت ہی مشکل ہو رہا تھا اس کو سالو کرنا. ہم نے چند جو ہے وہ سٹیپس میں اس کو سالو کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب ہم نیکسٹ جو چیپٹر میری ایگزامپل نمبر 5 ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں. فائنڈ دا والیوم آف دا سالڈ ریجن باؤنڈیڈ ابو بائی دا پیرابولائڈ z is equal to 9 - x square minus y square and below the unit circle in the xy plane. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ان کے انٹرسیکشن یعنی کہ بلو کیا ہے کہ ابو دا پیرابولائڈ اور بلو دا یونٹ سرکل تو یہ ایک اس طرح کا ایک سلنڈریکل شیپ بنتی ہے. اس کا ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو کیا ہوگا یہ وہ ریجن ہے ہم نے اس کا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ایکس اسکوائر اور وائی اسکوائر کی جگہ پر کیا کریں گے کہ یہ انٹیگرل ہے اور یہ 9 تو مائنس بار کامن لیں باقی یہاں پر کیا بچے گا ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر انٹو کیا بنے گا ڈی ایکس اور ڈی وائی بنے گا. ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے تو کیا کریں گے کہ ایکس اسکوائر وائی اسکوائر کو آر سے ریپلیس کر دیں گے. یہ دیکھیں آر اسکوائر سے ریپلیس کر دیا تو یہ 9 مائنس آر اسکوائر آ گیا. اس کے بعد ڈی ایکس ڈی وائی کو یا ڈی وائی ڈی ایکس کو ہم آر اور ڈی تھیٹا سے ریپلیس کر دیں گے. یہ بھی بات کلیئر ہوگی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ لیمٹس فائنڈ کرنی ہے. تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے اس نے کیا کہا ہے کہ پیرابولائڈ کی بات کی ہے پھر اس نے کیا کیا یونٹ سرکل کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. تو تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سلنڈریکل شیپ بن رہی ہے. یہ ایک سرکل ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک طرح کا سرکل ہے جس کا ریڈیس کتنا ہے ہمارے پاس 1 ہے. r is equal to 1 ہے. سرکل یونٹ سرکل ہے. اس کے کیا کرنا ہے ہم نے بلو اور یہ جو پیرابولائڈ ہے یہ والی شیپ اس کے ابو یہ ہم نے ایریا فائنڈ کرنا ہے. تو یہ ایک سلنڈریکل شیپ ہی بنتی ہے. تو سب سے پہلے تو آر کی ویلیو دیکھیں گے کہ تو یہاں پر ایک لگائیں گے جناب علی ایک ایل جو کہ انٹر کر رہا ہے 0 کو اور لیو کر رہا ہے 1 کو r is equal 1 کو. تو ہمارے پاس جو r کی لمٹ ہوگی 0 سے لے کر 1 تک. اب ہم نے اینگل بھی فائنڈ کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی سرکل میں سرکل کا جو فل اینگل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کتنا بنتا ہے 0 سے لے کر 2π تک. یہ سرکل ہے تو یہ اینگل کتنا ہوگا یہاں سے اگر ہم بات کریں یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہ 0 سے لے کر 2π تک ہوگا. تو اینگل 0 سے 2π تک آ گیا اینگل آ گیا. تو یہی اب کیا آ گیا کہ 9 مائنس آر اسکوائر انٹو آر ڈی تھیٹا. تو آر جو کم اندر ملٹیپلائی ہوگا 9r مائنس آر کیوب ڈی آر ڈی تھیٹا. اب ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے 9r اسکوائر بائی 2 ہوگا اور مائنس 4r کی پاور 4/4 ہوگا. اس پہ لمٹ لیں گے 0 سے لے کر 1 تک. جب ہم 1 پٹ کریں گے یہ 9/2 آ جائے گا اور یہ 1/4 آ گیا. اس کو کریں گے تو یہ 17/4 آ جائے گا. جب لوور لمٹ کریں تو 0 ہوگا. اس کا مطلب انٹیگرل آف ڈی تھیٹا آگا. اس کا آنسر کیا آئے گا تھیٹا اور تھیٹا پہ لمٹ پٹ کریں گے تو یہ 2π آئے گا 2π آ جائے گا. تو یہ 17/4 ہے ٹھیک ہے انٹو ملٹیپلائی کریں گے 2π تو یہ 2 4 سے کینسل تو یہ 17π/2 آ جائے گا. تو یہ انٹیگریٹ کرنا تو بالکل آسان ہے. بس آپ کو لیمٹس ہی فائنڈ کرنی ہے باقی سارا کچھ آسان ہے. لیمٹس آپ نے دیکھنی ہے بس کامن سینس یوز کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہماری ایگزامپل نمبر 5. اب ہم اپنی نیکسٹ جو ہمارے پاس شاید لاسٹ ایگزامپل ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں. اب ہم ایگزامپل نمبر 6 کی طرف موو کرتے ہیں. Using polar integration, find the area of the region R in XY plane enclosed by the circle. ہمارے پاس ہے x square plus y square is equal to 4. اس کا مطلب r square is equal to کیا ہے 4 ہے. اس کا مطلب r is equal to 2 ہے. یعنی کہ ایسا سرکل بنائیں گے جس کا ریڈیس کتنا ہوگا بھائی جس کا ریڈیس ہمارے پاس ہوگا 2. تو یہاں پر ایک سرکل بنا لیں. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کا ایک سرکل بنا لیں جس کا ریڈیس کتنا ہے 2 ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے پاس اوریجن ہے. تو سرکل کا ریڈیس بن گیا اور کس کی اکویشن ہے ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو 4. ٹھیک ہے. اور آر از اکول ٹو 2 آ گیا یہاں پر. اچھا یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے
above the line y is equal to 1, तो यहाँ पर एक लाइन भी खींच लें जो कि y is equal to 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, y is equal to 1. क्लियर हो गया, ये बात हो गई. इसके बाद अब हमने क्या करना है कि एक बिलो द लाइन y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. इसका ग्राफ भी हमने क्या करना है, प्लॉट करना है. तो ये इसका अगर हम ग्राफ करें तो ये तकरीबन इस तरह का एक ग्राफ बनेगा कि जो है या इस तरह से, ठीक, इस तरह का, यानी कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो इन तीनों में कॉमन रीजन है वो फाइंड करना है. ये सर्कल है और ये y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x, तो इसका कॉमन रीजन क्या होगा, ये वाला होगा. अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हमें ये तीनों पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, ये दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे. ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं. यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम, क्या करेंगे इस पॉइंट की. तो यहां पर क्या है कि y ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 1 को, और यहां पर जो इसके साथ इंटरसेक्ट करे वो सर्कल की इक्वेशन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है. अगर हम y की वैल्यू यहां पर डाल दें तो ये दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 माइनस 1. ठीक है, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू y की जगह पर 1 डाल दें, 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर तो विल बी इक्वल टू 3. तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा. तो ये पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया. इसके बाद अब हमने फाइंड करना है जनाब अली, ये वाली चीज फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है. तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x है, और ये जो सर्कल की इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर भी y की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी 4. ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू डालेंगे ना, सॉरी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1. तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 1 आ गई. अब यही 1 उठाकर इधर डाल दें तो ये क्या बन जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, तो ये y की वैल्यू निकल आएगी, वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो ये दो पॉइंट्स थे जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली. तो अब हम क्या करते हैं, इधर से r की वैल्यू को फाइंड करते हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. तो यहां से एक जो है वो क्या करेंगे, लाइन खींचते होते हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑफ r होती है. यहाँ पर r कितना है, 2 है, इंक्रीजिंग ऑफ r होती है. तो पहले किसको टच कर रहा है, y इज इक्वल टू 1 को. ठीक है, और फिर किसको जो है वो ये टच कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को. तो क्या है, अब पहले जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू 1, और अपर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो y को हम किससे रिप्लेस करते होते हैं, r साइन ऑफ थीटा. तो r कितना है, 2 है, तो साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, तो पहले किसको टच कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 1 को. तो y की जगह पर हम क्या रिप्लेस करते हैं, r साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 है. तो यहां से जो r की वैल्यू अगर हम दें 1 बाई साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होती है, कोसिकेट ऑफ थीटा की इक्वल होता है. यानी कि यहां से जो ये वाली टर्म होगी ये क्या होगी, r इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, इसकी लोअर लिमिट. इसके बाद इसको टच कर रहा है तो ये क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की इक्वल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4 के. तो इसकी जगह पर हम r स्क्वायर डाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 4. तो यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगी. तो इसका मतलब जो लोअर लिमिट होगी वो r इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा होगी, जो अपर लिमिट होगी वो कितनी होगी, 2 होगी. तो यही हमने दो वैल्यूज डाल दी. इसके बाद अब हमने एंगल फाइंड करना है. तो एंगल फाइंड करने के लिए ये दो पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से हम जो है वो ये एंगल फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले तो यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर गिरा लें आप. ठीक हो गया, ये परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर गिरा लेना है. ठीक हो गया, तो यहाँ से ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी. तो यहाँ से हम आसानी से इसका फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम tan को यूज करें, tan ऑफ क्या होता है y बाई एक्स, तो y कितना है 1, ओवर में क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा. तो 1 tan जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 पे जो थीटा यहां से निकालना है, तो tan इनवर्स कितना होता है पाई बाई 6 पे. ठीक है ना, या थीटा tan थीटा की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब आती है, जब थीटा कितना हो पाई बाई 6. तो यहां से यहां तक का पाई बाई 6 आ गया, ये हमने निकाल लिया.
اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہاں تک بھی، کیونکہ ہمیں ویلیو چاہیے یہاں سے لے کر یہاں تک جو باؤنڈری ریجن ہے اس کا ایریا چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، پائی بائی 6 یہاں سے یہاں تک فائنڈ کر لیں اور اس کو اگر ہم یہاں سے یہاں تک کا فائنڈ کر لیں تو اس کو ہم نکال دیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک میں سے، تو یہ ہمیں وہ ریکوائرڈ اینگل مل جائے گا. یہاں سے لے کر یہاں تک کا اینگل یہ فائنڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم یہ والا ہی یوز کریں گے کہ یہ ایک پرپینڈیکولر کھینچ لیں گے، یہاں پر بھی ٹین فارمولا لگا کے یہاں سے بھی اینگل آئے گا وہ پائی بائی 3 ہوگا. یہ اس کا لوور لمٹ ہوگی، یہ اس کی اپر لمٹ ہوگی. تو یہی لوور لمٹ اور اپر لمٹ ڈال کے اب ہم اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. کیا کیا کہ یہ ڈی ایکس ڈی آر اس کو ڈیفینیٹلی ہم نے یہاں پر دیکھیں تو یہ اچھا فنکشن یہاں پر کیا ہے اس نے دیا ہوا وہ 1 ہے، ٹھیک ہے. اور جو ڈی ایکس ڈی وائی ڈی آر تھے اس کو ہم نے آر ڈی تھیٹا سے کنورٹ کر لیا. یہ لیمٹس میں نے آپ کو بتا دی کہ کس طرح آئیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ انٹیگرل کو ایویلویٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے آنسر جو ہے وہ تھا ہم نے فائنڈ کر لیا. تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بہت امپورٹنٹ جو ایگزامپل تھی ان کو جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی. 2 امپورٹنٹ ایگزامپل تھیں اور یہ آخری بھی ایگزامپلز امپورٹنٹ تھی کیونکہ ہم انہی کی مدد سے ہم آگے جو ہے وہ پولر سسٹم جو ہے وہ چینج کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو میری کوشش پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.